Can you see the screen, beta? No, ma'am. Okay, now I think it's wasted. Yes, ma'am. Okay. Okay, students. So you see, beta, हमने क्या किया था कल? So I'll just make a summary of what we have done till now in Fourier. Okay. So अगर किसी ने classes नहीं लगाई हैं, then you can just look at the formulas for today. Then you can go back to the lectures and you can see. So we have seen if our function fx is continuous, piecewise continuous, right, and periodic, then we had written कि अगर आपका interval alpha to alpha plus 2l है, okay, इस केस में आपकी Fourier series expansion क्या बनती है? Fourier series expansion of the function is a naught by 2 plus n from 1 to infinity an cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l, where what is your a naught? A naught is 1 by l alpha to alpha plus 2l f of x dx. An is 1 by l alpha to alpha plus 2l f of x cos n pi x by l dx, and bn is 1 by l alpha to alpha plus 2l f of x sin n pi x by l dx. Okay, so this is when your interval is alpha to alpha plus 2l. Also, you can have your interval from alpha to alpha plus 2 pi. The only thing you will replace everywhere here L with pi, right? And then you have interval from minus L to L. In that case, here you will replace alpha with minus L. Is that okay? So mostly we had these two intervals, minus L to L or minus pi to pi. Here we assume that function is periodic with period 2L. Function is periodic with period 2L. And here you assume that periodic with period 2 pi. Okay, beta? And then we had seen if your interval is alpha to beta, in that case, what you have to do, you have to assume that this is alpha to alpha plus 2L. So basically you're calling beta as alpha plus 2L. So beta is equal to alpha plus 2L. And from here you'll get L is beta minus alpha by 2. So rest everything is same. So I have given you a list of formulas. But अगर सिर्फ आप ये वाला याद रख रहे हो तो everything else like from minus pi to pi or alpha to beta, you can use this and you can derive that. For example, in pi, this and this will cancel. So you have cos nx, sin nx, right? Is that okay, beta? And then we have seen that if your interval is particular from minus L to L or minus pi to pi, in such intervals, we always check if function is even or odd. Here, if function is even, in that case, bn is 0. And if function is odd, in that case, an and a naught is 0. Okay, so directly we write the Fourier series expansion as, here we will write the Fourier series expansion as a naught by 2 plus n from 1 to infinity an cos n pi x by l, and here directly we'll write n from 1 to infinity bn sin n pi x by l. Is that okay? So if you are using this information, whether your function is even or odd, accordingly you can save some time. Here, for example, you are not computing bn, and here you are not computing ans and a naught. Okay, beta. So this is what we have done till now. Anybody having doubt till here, beta? Have you practiced? शायद आप लोगों ने किया नहीं होगा, आपका टेस्ट है आज, बट इसके क्वेश्चंस करना बेटा, बिकॉज इंटीग्रेशन में बच्चों को दिक्कत आती है. सो इंटीग्रेशन आप करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे तो यू इंटीग्रेट एंड यू fully solve the problems, then you will understand. Okay, beta. So shall we move ahead? Everybody, tell me please. चले आगे बेटा. डाउट है यहाँ तक? मैम Yes, बेटा. Yes. मैम ये ना ट्यूट शीट नंबर 3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4 एक मिनट आप देख लीजिए, वो सॉल्व नहीं हो रहा मैम. अच्छा,
एक मिनट बेटा, ये हमारा बीच का हो जाएगा। दैट इज फॉर फ्रॉम डिफरेंशियल। यस मैम। बोल सकते हो क्या है क्वेश्चन? मैम क्वेश्चन, मैम एक सेकंड मैम, आपको मैंने व्हाट्सएप किया था, एक सेकंड। अच्छा आपने किया था बेटा, सॉरी है ना, मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया। आई एम सॉरी बेटा, आप मुझे बता दीजिए अभी। हाँ हाँ जी मैम, क्वेश्चन इज x+2 का होल स्क्वायर। ओके मैम उसके बाद यहाँ पे मैं y का डबल डेरिवेटिव। ओके मैम फिर उसके बाद प्लस x+2 इंटू वाई डैश। ओके बेटा मैम उसके बाद मैम इसके आगे माइनस y इक्वल टू 24x। ओके। क्या है क्वेश्चन? सॉल्व इट विद, कुछ लिखा हुआ है? मैम नहीं मैम, कुछ नहीं लिखा हुआ मैम, बस इन्होंने बोला कि इसका वो सॉल्यूशन निकाल के दो बस। ठीक है, ये हमने क्लास में भी किया था ऐसा क्वेश्चन, इफ यू रिमेम्बर। अब आप मैम मुझे बता। कौशी आइलर। कोई बात नहीं बेटा। हाँ, ये कौन सी फॉर्म है? कॉशी आइलर है। तो आप हाँ क्या जी लिखेंगे? x+2 y को क्या कैसे पुट करोगे बताओ? मैम, इसमें हम x+2 को ई की पावर z पुट कर देते थे, मतलब हाँ, x को ई की पावर z पावर। पुट कर देते थे। हाँ ठीक है, तो और आपका x+2 स्क्वायर y डबल डैश विल बी रिप्लेस बाय। मैम यहाँ पे ना d2y अपॉन, मैम यहाँ पे ना dz2 ना माइनस ऑफ dy अपॉन dz। ठीक है, इससे रिप्लेस हो जाएगा ये। और आपका x+2 y किससे रिप्लेस हो जाएगा? मैम यहाँ पे ना dy अपॉन dz से मैम। ठीक है, सिंपल। तो आपका ये क्या बन जाएगा? d2y/dz2 माइनस dy/dz प्लस dy/dz। समझ आ रहा है बेटा? यस माइनस मैम। 1 = 24। Here you will have e⁻z−2। Okay बेटा? यस मैम। Now what is this? This and this will cancel. So you have d2y/dz2 minus y is equal to 24 e⁻z−2। ऑक्सिलरी ओके, सॉल्व करेंगे मैम। हाँ इसको करिए बेटा। ये क्या बन जाएगा आपका? एम m स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 1 इक्वल टू 0, जीरो, m इज इक्वल टू एम प्लस इज माइनस इक्वल टू 1। प्लस माइनस वन। वन राइट। तो आपका वाई y बन जाएगा y इक्वल टू ना C1 c1 e टू द पर पावर जेड। x z प्लस c2 e जेड टू है द ना? पावर हाँ, माइनस z। माइनस जेड। ओके, अब हमने ये देखना है। हो रहा है, आपकी हो मैं रहा है। कोई भी लगा लो, मैं मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट लगाऊंगी। तो अगर मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट लगाएंगे तो व्हाट वी विल अज्यूम, yp इज इक्वल टू, ये क्या है? दिस इज 24 e टू द e⁻z पावर z। माइनस 48। तो यस इसके मैम। कॉरेस्पॉन्डिंग अब देखिए, e⁻z इज वन रूट, यस मैम, है मैम, e⁻z वहाँ पे रूट है तो ए मैम वहां वन से, है। तो मैम वहाँ पे x हाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो ए जेड से, x, एक्स से हाँ जेड हाँ जी मैम, z से। यस ई मैम। रेस यस पावर मैम। जेड, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक कांस्टेंट। इज दैट ओके बेटा? यस मैम। ये भी है ना कांस्टेंट। दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो। जीरो। और राइट एंड अच्छा लेफ्ट हैंड मैम, साइड मैं पे ना पाई इसको वाला। अलग ट्रीट करके सॉल्व कर रहा था, जैसे ये एमओयूसी का फोर्थ केस है ना, ये वाला वो मैम, वो जिसमें पॉलिनोमियल बनता है। हाँ जी बेटा। तो मैं उसको अलग सॉल्व कर रहा था, मतलब हम एक ही में इसको कंसीडर करेंगे, जैसे लाइक वाईपी इक्वल जैसे आपने बनाया। अगर आप अलग भी करोगे बेटा एक ही बात है। अगर आप दो बार कर रहे हो कि, हाँ ऑब्वियसली इकट्ठा ही करना चाहिए वैसे। अगर आप ये एज्यूम कर रहे हो कि yp इज इक्वल टू ए जेड ई रेस पावर जेड, एक बार yp इज इक्वल टू बी डाल यस रहे हो, मैम, यस ऐसा मैम, कर, यस मैम। तो सेम ही बनेंगे आपके जो इक्वेशंस बनेंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि इसको भी आप सोल्यूशन मान रहे हो, इसको भी सोल्यूशन मान रहे हो। ओके, ठीक है। हाँ जी मैम। करके देखो आप। ये पुट करो, लो मैं कर ही देती हूँ आपको। ये हाँ इसमें जी पुट मैम। करो। आपने कैसे किया? पहले इसको पुट किया फिर इसको पुट किया। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। मैम जब आप उस, इसको पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? लो मैं आपकी तरफ जैसे आपने किया। अगर हम इससे करेंगे, मान लो ये जो मैंने लिखा है, तो yp डैश विल बी ए जेड ई रेस पावर जेड प्लस ए ई रेस पावर जेड, एंड yp डबल डैश विल बी ए जेड ई रेस पावर जेड प्लस ए ई रेस पावर जेड प्लस ए ई रेस पावर जेड। यस मैम। Correct? So यस this मैम। will यस be मैम। a z e raised power z plus 2a e raised power z minus y is your a z e raised power z minus b is equal to 24 e raised power z minus 48। मैम हम यहाँ राइट? से कोफिशिएंट कंप्यूट कर देंगे। ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपके पास e raised power z का हो गया 2a is your 24 and एंड बी इज b is equal 48। to 48। So a आपका आ गया 12। और अगर आप वैसे कर रहे हो, एक बार सिर्फ आपने ए एज्यूम किया मान लो, ठीक है, ये इसमें पुट कीजिए। जब आप पुट करोगे, अगर आपने वाईपी को सिर्फ ये एज्यूम किया ए जेड ई रेस पावर जेड, उस केस में आपका वाईपी अब सेम ही बनेगा डेरिवेटिव ना, क्योंकि हाँ जी, इसका हाँ जी जब मैम, वो कोई हो सेम गया ही था। आएगा। ठीक है, तो सेम ही आएगा। आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे? यू विल हैव मैम वो सारा ए कुछ जेड, सेम ही बनेगा, सारा प्रोसेस सेम ही हाँ होगा। टू नहीं, ये यहाँ पे ये बनेगा। अब हमने बी नहीं ऐड किया ना, माइनस यहाँ पे आपका बनेगा वाई।
आपने ये पुट किया ए जेड ई रेस पावर जेड इज इक्वल टू, फिर राइट हैंड साइड पे सिर्फ आप ये लिखोगे ना, क्योंकि अगर आपने सिर्फ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एज्यूम किया तो यस यही मैम, यस लिखोगे, मैम, तो यस अगेन यू मैम। विल सेम इक्वेशन। गॉट इट बेटा? सो ए की वैल्यू 24 से 12 आ गई, ठीक है, और फिर आप बी पुट करोगे, बट ऑब्वियसली इकट्ठा पुट कर देते हैं हम। मैम समझ आ गया? जैसे अगर यहाँ पे नहीं बताया तो एमओवीपी आसान पड़ता है, तो एमओवीपी हाँ से कर ही हाँ, सकते हैं ना। तो उससे कर लो बेटा, ठीक हाँ, है। जो भी आपको सही लगता है। तो योर फाइनल आंसर C1 e raised power z plus C2 e raised C2 power e to the minus power z minus z and plus then 12z e raised power z plus plus 48. Now you 48। will अब convert it. Okay, so यहाँ x पे plus मैम 1 उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, z हाँ, की वैल्यू पुट so कर this देंगे। is yeah C1 1 plus x plus C2 1 plus x की power minus 1 plus 12 log of x plus 1 into x plus 1 अलग से, right, plus 48. So this is your answer. समझ आ गया बेटा? कंपटीशन में गलती हो गई मैम, क्योंकि 48 आ गया था मेरा, ये 12 ln x वाला नहीं आ रहा था मेरा। ओके, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। एनी अदर डाउट बेटा किसी को? मैम ओके, क्लियर है बेटा ये चीज? यस मैम, आपको थैंक यू ओके, मैम। सॉरी बेटा आई कुड नॉट रिप्लाई, एक्चुअली मेरी ना बेटी बीमार थी, आई एम रियली सॉरी। ओके, मैं भूल ही गई। नहीं मैम, मैम वो इतना अर्जेंट भी नहीं था बस, नहीं, थैंक यू। आपने शायद कॉल भी किया था ना, हाँ जी मैम, हाँ जी है मैम। ना? सॉरी, आई एम रियली सॉरी बेटा, मेरे दिमाग से स्किप हो गया। ठीक है, Okay. ओके। एनी अदर डाउट बेटा किसी को? यू कैन आस्क मी। सबकी तैयारी है आज के टेस्ट के लिए? मैम ये जो आंसर आपने निकाला है मैच नहीं कर रहा जो नोट शीट में ओके, दिया कैन हुआ यू है टेल उससे। मी व्हाट इज द आंसर? और एक मिनट में शीट निकाल ही लेती हूँ, जस्ट क्या लिखा हुआ है आंसर बताएगा कोई? शीट नंबर कौन सी है? 3? यस मैम, ट्यूट नंबर, यस मैम, ट्यूट शीट 3 है मैम। 3 का कौन सा? 4th? फोर्थ नहीं, क्वेश्चन है मैम। मैम अगर ax प्लस b की फॉर्म का होता है ये, तो हम a से आंसर मल्टीप्लाई बताइए। कर देते ना। शीट नहीं, आंसर बताइए, क्या कह रहे हो बेटा? मैम अगर ax प्लस b की फॉर्म का होता है कॉशी एलर में, तब हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। राइट एंड हाँ, अगर यहाँ पे, हाँ, फिर यहाँ पे ये ए स्क्वायर आता है एक, ठीक है, और यहाँ ए आता है, हाँ ठीक है। जी मैम, ठीक है मैम। अच्छा बेटा, आंसर बताएगा कोई प्लीज? मेरे पास ना शीट दूसरी है, पुरानी वाली। एक्चुअली आंसर काफी डिफरेंट है मैम जो आपने निकाला है। वहां अच्छा पे ना वेट, मैम z को x प्लस 2 पुट करा है इन्होंने। हाँ, तो z को x प्लस 2, z को थोड़ी x प्लस 2 पुट करना है, ये z को ln x मैम प्लस 2 पुट किया होगा। ठीक है। z तो हमारा e रेज़ पावर z है हमारा x प्लस 2, ठीक है। मैम लेट मी एक्चुअली वहां पे लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है ट्यूट शीट में फिर वो z गलत को। लिखा होगा, लेट मी जस्ट चेक, ठीक है। हमारी साइट पे पड़ी है ना। 3 का क्वेश्चन नंबर 4, 24x, हमने यहाँ सही लिखा ना, x की जगह पे हमने क्या लिखा? e रेज़ पावर z माइनस 2। आंसर देखिए बेटा, आपका आ रहा है C1 x प्लस 2, ये तो सही है, पहला पार्ट है ना। यस मैम, जो वो ऑक्सिलरी से आया वो सही आया है। हाँ, वो पार्ट तो सही है। एक मिनट, उन्होंने सेट x प्लस 2 z C1, हाँ, उसके बाद है 24x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 12, नहीं, हमारा 12 log ऑफ x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 आ रहा है, ये सही है, राइट? यस मैम, है ना? 12 6 40, 12 उसके बाद ये 72 72 माइनस 72 प्लस 24 इज हाउ मच? 72 प्लस 24 नहीं, गलत है 48 ही आंसर, है। नहीं नहीं, गलत है बेटा ये आंसर, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। इसमें नहीं, ये देखो, ये वाली टर्म कहाँ से आएगी? 24x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये तो आएगी नहीं, गलत है, ठीक है। और मेरे पास ये सेम क्वेश्चन है दूसरी ट्यूट शीट में, उसमें भी हमने आंसर लिखा हुआ है, ये मिस प्रिंटिंग है बेटा। द आंसर इज व्हाट आई हैव कंप्यूटेड। ओके बेटा, थैंक यू मैम। ठीक है, तो दिस आंसर इज रॉन्ग, आई जस्ट will correct it, but this is wrong, ये गलत लिखा मैच ही हुआ नहीं कर रहा मैम, वही मैंने बोला था ना मैम, वो जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो तो मैच के, तो सेकंड वाले में है। दिक्कत हाँ, थी। ये गलत है बेटा, 24x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये तो आएगा ही नहीं फैक्टर, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसको करेक्ट करवा दूंगी। द आंसर इज व्हाट वी हैव कंप्यूटेड। ओके फाइन मैम। बेटा, दिस इज योर आंसर, इसमें कुछ है ही नहीं डिफरेंट, मतलब ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है।
ओके, एनीथिंग एल्स बेटा? किसी और को डाउट? यू कैन आस्क मी बेटा. चले फिर आगे फूरियर में. यस मैम. नहीं मन कर रहा है ना आज? क्या हो गया सब? किसी के डाउट्स हैं तो दिस इज ऑल्सो गुड. अगर आपके डाउट्स हैं वी कैन डिस्कस दैट. नहीं है? ट्यूटोरियल पूरी कर ली सबने? मैम वो एमओयूसी में कंपटीशन में प्रॉब्लम आ रहा है जब वो, क्योंकि उसमें डिफरेंशिएट करके बड़ी सारी टर्म्स हो जाती हैं. हाँ जी बेटा, वो तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी. बस ये है कि यू शुड बी कंफर्टेबल मैम विद. हाँ मैम जी लेकिन बेटा. आज के टेस्ट में तो हम ये कर सकते हैं ना, अगर एमओयूसी से बोले तो फिर हम उससे हम वो एमओवीपी से निकाल दें तो. हाँ हाँ, आंसर सेम आएगा. ठीक है, आंसर सेम आएगा. तो आज तो हम ऑब्वियसली उसको तो मैम एक बोलेंगे बार ही ये नहीं. बता दो मैम. हाँ जी. हाँ जी. मैम ये बता दो कि ये रॉन्स्कियन जो है ये मैम लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट में मतलब क्या क्या होती है उनकी वैल्यूज? किसकी? रॉन्स्कियन की? यस मैम. अच्छा, जो आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने रॉन्स्कियन निकाला है उसका, दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग? यस मैम. यस मैम. एक सेकंड दीजिए. देखो बेटा, वी हैव सीन दिस थिंग कि अगर आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0 and y1 and y2 are two solutions, okay, then their Wronskian has this property, Wronskian of y1 y2, which is defined as y1 y2 y1 dash y2 dash. Then we have this property that y1 and y2 are linearly dependent. y1 and y2 are linearly dependent if and only if their Wronskian is identically 0. If and only if their Wronskian is identically 0. Identically 0 matlab for all values of x it is 0. And they are linearly independent. y1 and y2 are linearly independent if and only if their Wronskian is never 0. Is that okay, beta? This is the result we have. This is what you are asking, beta. मैम एक बार ये भी बता दो कि लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या था? अच्छा बेटा, ये देखिए बेटा, आपके पास आई हैव टोल्ड यू कि मान लो आपने इसका सॉल्यूशन लिखना है y डैश प्लस y डैश इक्वल टू 0, राइट? ओके, ये वैसे आपको ऐसा अभी इतना आएगा नहीं, बट मैं वैसे बता रही हूँ इसका क्या मतलब है. इसमें देखिए, मैंने आपको बोला था कि अगर आप दो सॉल्यूशन गैस कर लेते हो तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन इज अ सॉल्यूशन. याद है स्टार्टिंग में बोला था. अब इसका मैं गैस करूं y इज इक्वल टू 1, मैंने गैस कर लिया कि इसका सॉल्यूशन है क्योंकि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, और किसी और ने गैस कर लिया कि y इज इक्वल टू 2 भी तो सॉल्यूशन है. ठीक है, या फिर आप ये ले लो y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0. किसी ने गैस कर लिया कि sin x इसका एक सॉल्यूशन है, किसी और ने कहा कि 2 sin x भी एक सॉल्यूशन है. ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 and 2 sin x and 2 sin x, इसको y1 इसको y2 ले लो. So here you see y2 is 2 times y1 and here y2 is 2 times y1. So y1 and y2 they are dependent. Dependent मतलब one is a multiple of other. Okay, is that okay? When you have two functions and when you say they are dependent, इसका मतलब one is a multiple of other. अगर 3 फंक्शंस हैं इसका मतलब one is a linear combination of others. बट अभी क्योंकि हम दो फंक्शंस की बात करेंगे क्योंकि सेकंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो if one is a multiple of other we call it dependent. If one is not a multiple of other we call them independent. Is that thing clear बेटा? अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आपका जनरल सोल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि इसको अगर आप लिखोगे c1 y1 प्लस c2 y2 तो वो क्या आएगा? c1 sin x प्लस c2 2 sin x. इसमें से sin x कॉमन आ गया, अंदर आपका c1 प्लस 2c2 है. यू कॉल इट अनदर कांस्टेंट, कॉल इट a. सो दिस इज a sin x.
सो दिस इज नॉट द जनरल सोल्यूशन. क्यों? क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, इसकी जनरल सोल्यूशन में 2 पैरामीटर्स होने चाहिए थे, है ना? Yes, ma'am. Yes, yes. Okay, so here you see sin x and cos x, they are the solution. किसी ने गैस किया कि sin x solution है, किसी ने गैस किया कि cos x एक solution है. You cannot write sin x as a multiple of cos x or vice versa, so they are linearly independent. Okay, is this thing clear? Here you can check their Yes, ma'am. Wronskian. यहाँ पे क्या आएगा? sin x 2 sin x और इसका sin x का डेरिवेटिव cos x 2 cos x. So what is their Wronskian? 0. 0 आ गया ना? ठीक है. और यहाँ पे इनका Wronskian क्या है? sin x cos x minus sin x. So this is -1, never 0. So ये इंडिपेंडेंट हो गई, ये डिपेंडेंट हो गई. क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. तो फॉर राइटिंग बाद में तो हमने गैस करना छोड़ ही दिया था, क्योंकि हमें ऑक्सिलरी वाला मेथड पता चल गया था. बट जब आप गैस करते हो तो 2 सॉल्यूशंस ऐसे गैस करने हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तभी जनरल सॉल्यूशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा. ये है थ्योरी. Okay, ma'am. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. या एनीथिंग एल्स बेटा? किसी और का डाउट? मैम ये 3 उसका 3x3 मैट्रिक्स का रॉन्स्कियन कैसे निकालते हैं? अच्छा बेटा, वैसे वो आपको हमने क्योंकि वी हैव वैसे ऐसे निकालते हैं y1 y2. मान लो 3 मैट्रिक्स है आपके पास, 3 फंक्शंस है, तो यू विल कंप्यूट लाइक दिस: y2 डेरिवेटिव, y3 डेरिवेटिव, y1 डबल डेरिवेटिव, y2 डबल डेरिवेटिव, y3 डबल डेरिवेटिव. ओके, सो इफ यू हैव n फंक्शंस देन योर रॉन्स्कियन विल बी, इफ यू हैव से 4 फंक्शंस, उनका रॉन्स्कियन निकालना है अगर आपने. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल कंप्यूट. पहले रो में फंक्शंस, दूसरी रो में उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तीसरी रो में उसका सेकंड डेरिवेटिव, ओके, चौथी रो में उसका थर्ड डेरिवेटिव. सो यू कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस थिंग्स. बट क्योंकि हमने सिर्फ आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कराया है, तो हम यहाँ तक ही जाएंगे. बट हाँ, ऑब्वियसली रॉन्स्कियन कंप्यूट करने के लिए शायद आपको बोल सकते हैं. तो दिस इज हाउ यू कंप्यूट द रॉन्स्कियन. So this is Wronskian of y1, y2, y3. This is the Wronskian of y1, y2, y3, y4. But ये जो y1, y2, y3 वाला है, इसमें से फिर हम वेरिएबल्स कैसे निकाल लेंगे? a b c जो हमने निकालने हैं, उसके बाद वो कैसे निकलेगा? कौन सी ABC बेटा? मैम जो जैसे हमने रॉन्स्कियन उसके बाद किया, उसके बाद इन्होंने बुक में ना एक क्रैमर्स रूल लगा के कुछ किया हुआ है. वो थर्ड आप मेरे ख्याल से वो कह रहे हो, थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो आप? यस मैम, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में इन्होंने ये रॉन्स्कियन क्रैमर रूल, तो वो रॉन्स्कियन, उसको वो रॉन्स्कियन नहीं है बेटा. क्रैमर्स रूल तो आपने शायद पढ़ा होगा ना. ये होता है जैसे मान लो 4x + 3y, वो क्रैमर्स रूल इज दिस बेटा. अगर आपके पास 4a + 3b = 5 है, मान लो मैं 3 वाले ले लेती हूँ, अगर आपका 3 है, ठीक है. मान लो आपके अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट में ये आ गई इक्वेशंस: a - b + c = 4, 2a + 2b - c = 5. ठीक है. मान लो आपने जो अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट है, उसमें एंड में जब आपने वेरिएबल कंप्यूट कोएफिशिएंट कंपेयर किए, ये सिस्टम बन गया. ओके बेटा. अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करते थे आप? या तो आप किसी एक इसमें से c निकाल के इन दोनों में पुट कर दो, ये दोनों a b में हो जाएंगी, फिर सॉल्व कर लो. और एक होता है सिंपल क्रैमर रूल, क्रैमर्स रूल. वो क्या होता है, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा? यस मैम पढ़ा. व्हाट इज दैट कि आपने एक नीचे वाला डिटरमिनेंट लिखना है, व्हिच इज 4 3 1 4 3 1 1 - 1 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है. 2 2 - 1, ये शायद +2 में होता है गेस. फिर यहाँ पे 2 4 5, मतलब अगर a निकाल रहे हो तो उसका कॉलम रिप्लेस कर दो, बाकी सेम है ना. तो इससे निकल जाता है. ऐसे b निकालते हैं तो सेकंड कॉलम रिप्लेस कर देते हैं, ऐसे c निकालते हैं तो थर्ड कॉलम रिप्लेस कर सकते हैं. सो आई थिंक अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट में तो ये यूज हो रहा होगा, रॉन्स्कियन नहीं हो रहा होगा, या रॉन्स्कियन हो रहा है? मैम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में रॉन्स्कियन यूज हो रहा है. अच्छा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में जो उसमें जिसमें हमने रॉन्स्कियन निकाला है. बट वही मैं कह रही हूँ कि फिर आप थर्ड ऑर्डर का सॉल्व कर रहे हो क्या उसमें? यस मैम. उसके बुक का पेज बता सकते हो बेटा? मेरे पास बुक है 5.30. जस्ट आरके जैन की बात कर रहे हो ना बेटा? यस मैम. ओके, जस्ट गिव मी 2 minutes, आई जस्ट, क्योंकि मैंने जो क्लास में नहीं कराया है तो वो आपका मतलब ऑब्वियसली अगर आप कर रहे हो तो इट्स अ गुड थिंग, बट
हाँ जी बेटा 5.30 is the example number you are talking about. Yes, ma'am. 5.3 for example. I was just going through it, so I. हाँ मैं वही बता रही हूँ बेटा. हाँ let me just clarify, right? तो ये आपके मैंने आपको क्लास में नहीं कराया है. This is third order बेटा. ठीक है. y triple dash minus 6y double dash plus 11y dash minus 6y is equal to e raised to minus x. Okay बेटा. This is you are saying? Yes, ma'am. है ना. तो इसमें देखिए आपका ये थर्ड ऑर्डर है. थर्ड ऑर्डर वाली हमने करी ही नहीं है क्लास में, बट अगर आप करना चाहते हो तो ये पूरा आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन वैसे ही बनेगी. अब यहाँ पे क्योंकि सेकंड ऑर्डर तक आपका वो आ रहा था स्क्वायर वाला, थर्ड ऑर्डर तो हमने डिस्कस ही नहीं किया बेटा क्लास में मैंने. ठीक है. तो ये बन गया. एंड देन यू हैव एज्यूम्ड बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स वाई एक्स इस फॉर्म का एज्यूम करना है. अब ये भी मैंने नहीं बताया कि इस फॉर्म का क्यों एज्यूम करना है. ठीक है. बट इफ यू वांट टू डू, फिर उसके बाद इन्होंने कि आपको पहले ये देखना है कि थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है, तो पहले तो आपको यही है कि इसके रूट्स आएंगे, फिर सॉल्यूशन कैसा लिखना है. ओके बेटा. I was getting confused. ठीक है. तो ये थर्ड ऑर्डर की हमने नहीं की है बेटा क्लास में. Okay, ma'am. ठीक है. इज दैट ओके बेटा? तो थर्ड ऑर्डर की जस्ट स्किप इट. Okay, ma'am. Thank you. या श्योर. और बेटा किसी को डाउट्स? विल नॉट डू टुडे फूरियर. मैं डाउट्स ही बताती हूँ आप लोग पूछे मुझसे. एनी डाउट्स बेटा? ये वाले डाउट्स भी आप ना क्लास में पूछ सकते हो, जैसे अभी आपने बुक से किया है ना, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द क्लास एट द एंड. 5 मिनट्स आप मुझे बोल दीजिए, 10 मिनट्स की मैम ये मेरा डाउट है. इट्स अ गुड थिंग अगर आप लोग ऐसे बुक से पढ़ रहे हो. इट्स वेरी गुड. बताओ बेटा किसी और को डाउट? नहीं है? फिर क्या आगे पढ़ा दूं? बताओ बेटा. अब तो आप पूछ नहीं रहे डाउट्स. और किसी को नहीं है? नीतीश, अभिनव, आयुष, आरुजा, किसी को डाउट नहीं है बेटा? खुशी, लीजा, मानस, तुषार. चले फिर आगे फुरियर पढ़े. एम आई ऑडिबल? अच्छा ये तो बता दो. एम आई ऑडिबल बेटा? Yes, sir, you're audible now. ओके. सो शैल वी स्टार्ट विद फुरियर. फुरियर का भी मैं छोटा सा टॉपिक करा देती हूँ साहब. ओके. सो बेटा कैन यू टेल मी इन मैथ्स 1 you had a function f of x and then you had written the corresponding Taylor series, right? And then we have seen कि ये जो टेलर सीरीज लिखी है, क्योंकि सीरीज कन्वर्ज हो ना हो जरूरी नहीं है ना. तो then we have seen कि when the series will converge and if this series is convergent it may not converge to f of x. याद है ये चीज? This is what we have done. Same scenario is here. We have a function f of x. We have written its Fourier series. Okay. So you are given a function f of x. Given a function f of x. We have written its Fourier series. Now we would like to know. When and to what value the Fourier series is converging. The Fourier series is converging. क्वेश्चन समझ में आया बेटा सबको? So writing like this, जब हम ऐसे लिखते हैं ना कि f of x is equal to a naught by 2 plus n from 1 to infinity an cos nx n pi x by l plus bn sin n pi x by l. This is actually wrong. क्योंकि ये इक्वल लिखने का क्या मतलब है कि we are claiming this is convergent and converging to fx. So we should actually write, although we write like this, but we should actually write that Fourier series of f of x is a naught by 2 plus n from 1 to infinity an cos n pi x by l plus bn
sin n pi x by l. So now we would like to see कि ये जो सीरीज है वो किस को कन्वर्ज करती है, right? So for that I am writing a statement. Statement is if fx and f dash x are piecewise continuous, if fx and f dash x are piecewise continuous, on the interval minus L to L, then the Fourier series of f of x is convergent, on this interval is convergent. So फूरियर सीरीज कन्वर्जेंट होगी, उसकी क्या कंडीशंस हैं कि फंक्शन भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो तो राइटिंग द सीरीज की भी कंडीशंस है, और उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होना चाहिए. सो इफ बोथ फंक्शन एज वेल एज द डेरिवेटिव आर कंटिन्यूअस, देन वी आर सेइंग कि जो सीरीज होगी वो कन्वर्ज करेगी. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस पॉइंट किसको कन्वर्ज करेगी. ओके, एट द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी. अब आप क्या कह रहे हो कि इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो पीस वाइज कंटिन्यूअस है. इसका क्या मतलब है कि या तो वो कंटिन्यूअस होगा या किसी पॉइंट पे, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, और जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो जंप डिसकंटिन्यूटी होगी. ठीक है. सो इफ ए इज द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, इफ ए इज पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, देन फूरियर सीरीज कन्वर्जेस टू एफ ऑफ ए. मतलब जो भी पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है, फॉर एग्जांपल दीज आर द पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटीज, इसमें फूरियर सीरीज की कन्वर्जेंट है, वो फूरियर सीरीज विल बी कन्वर्जेंट टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. एंड इफ ए इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसका क्या मतलब है कि आपकी दिस इज योर इंटरवल माइनस एल टू एल, समवेयर हियर इज योर ए, और ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब लेफ्ट एंड राइट एंड लिमिट एंड लेफ्ट एंड लिमिट दे आर डिफरेंट. तो लेफ्ट एंड लिमिट को हम एफ ए नेगेटिव लिख रहे हैं और राइट एंड लिमिट को एफ ए पॉजिटिव लिख रहे हैं. So if A is the point of discontinuity, then Fourier series converges to the left hand limit plus the right hand limit divided by 2. मतलब इन दोनों की जो भी एवरेज वैल्यू होगी उसको Fourier series converge करेगी. Is this thing clear, beta? So what are the conditions for the convergence of the Fourier series? The conditions for the convergence of the Fourier series is that both the function and the derivatives, they should be piecewise continuous on the interval you are talking. And then after that we want to know to what value the Fourier series will converge. So if A is a point of continuity, then the Fourier series will converge to the value of the function. And if A is a point of discontinuity, then the Fourier series will converge to the average of the left hand limit and the right hand limit. Clear, beta? Now, okay, so here you see what will happen at the end points. So आपके पास माइनस एल यहाँ पे, एल यहाँ पे है. अभी आपने बोला जब भी आप फूरियर सीरीज लिखते हो तो यू एज्यूम योर फंक्शन इज पीरियोडिक, राइट? इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये, okay, just a minute. This value is same as this value, right? And this value is same as this value, right? And अगर इससे पहले भी ड्रॉ करते हो तो this value is same as this value. मतलब ये वाली जो वैल्यूज है वो सेम है और ऊपर रेड वाली सेम है. क्लियर? सो ये जो माइनस एल है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? ये क्या होगी? ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज सेम एज दिस वैल्यू इज सेम एज दिस वैल्यू जो एफ ऑफ एल पे है. तो इसमें जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी दैट विल बी एफ ऑफ एल फ्रॉम नेगेटिव साइन साइड, एंड जो राइट हैंड लिमिट होगी वो क्या होगी? एफ ऑफ माइनस एल फ्रॉम पॉजिटिव साइड. ओके, सो इस पॉइंट पे जो फूरियर सीरीज है वो किसको कन्वर्ज करेगी? सो एट लेफ्ट हैंड
Fourier series will converge to f of minus L positive plus f of L negative divided by 2. And at the right end, ये right end है, यहाँ पे भी what is this value? This value is same as this value, which is f of minus L from positive side, and this is f of plus L from negative side. So at left end and right end also the same value, this plus this by 2. So at left end and right end, at both ends, the Fourier series will converge to this value. ये point clear है बेटा? So suppose your interval is alpha to beta. So you will write कि इन दोनों end points पे जो Fourier series will converge to f of alpha. ये देखो आप यहाँ से देख लीजिए कि यहाँ पे alpha you are going from positive side and beta you are going from negative side divided by 2. क्योंकि इसके बाहर वाली इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं. We assume कि फंक्शन पीरियोडिक है, मतलब जो अल्फा बीटा में हो रहा है वही हर जगह हो रहा है. आगे अब आप बीटा से बीटा माइनस बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा जाइए. So whatever is the behavior here, the same is the behavior here, and so on. Okay, beta. So let us just this last problem I will do, then we'll stop, and we'll continue from here itself tomorrow. Question is, if you write the Fourier series expansion of the function, the Fourier series expansion of the following function. F of x is x square plus 1 for 0 less than x less than equal to 1. This is x plus 3 for 1 less than x less than equal to 5. And this is x square plus 7 for 5 less than x less than 7. Okay? Interval is 0 to 7. So if you write the Fourier series expansion of this function, to what value the series will converge at x is equal to 0, at x is equal to 1, at x is equal to 5, at x is equal to 7, and at x is equal to 3. Okay? Now can you tell me, beta? Look at this. X is equal to 0 is the left point. So this is the left point and this is the right point. So x is equal to 0 and x is equal to 7. These are the end points. So we see end points which Fourier series will converge to 0, f of 0 from positive side plus f of 7 from negative side by 2. So let us see what is the limit as x approaches to 0 from positive side. This is x square plus 1. This is 0 square plus 1. And what is the limit as x approaches to 7 from negative sign? That is 7 square plus 7 divided by 2. So how much is this? Whatever is the value. This is 57 by 2. Okay. Now look at x is equal to 1. X is equal to 1 is a point of continuity or discontinuity? Can you look at the function and can you tell me what is this? X is the point of continuity or discontinuity? देखिए ना बेटा, x 1 पे लेफ्ट हैंड साइड से 2 है वैल्यू, राइट हैंड साइड पे 4 है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. x is equal to 1 is the point of discontinuity. So point of discontinuity पे Fourier series will converge to left hand limit plus right hand limit divided by 2. So left hand limit here is 1 square plus 1, right hand limit here is 1 plus 3 divided by 2. Okay. Similarly, x is equal to 5. That again is point of discontinuity. X is equal to 5 is also point of discontinuity. So उस पे भी आपकी left hand limit plus right hand limit divided by 2. So left hand limit is your 5 plus 3. Right hand limit is your 5 square plus 7 divided by 2. And x is equal to 3. Can you tell me? X is equal to 3 is somewhere here. That is point of continuity. क्योंकि 1 और 5 में प्रॉब्लम है. So x is equal to 3 is point of continuity
Therefore, Fourier series will converge to f of 3. So what is f of 3? This is 3 plus 3, which is 3 plus 3. That is 6. Okay, beta? So this is how we see कि किस value को Fourier series converge करेगी. अगर if it converges, और convergent की condition क्या है? कि both the function and the derivatives, they should be piecewise continuous. Okay, beta? Okay, everybody, I will see you tomorrow. All the best for today's exam. Thank you, ma'am. Okay, Thank you. beta. Thank you, ma'am. Thank you. Have a nice day, everybody.